ये करने के बाद कि हाँ यार, I feel much more attentive now. Yes? Good. Good. Very nice. Very, very nice. Good to see you all. Very good morning and welcome to your day 16. 16 ki hai na? हाँ. Day 16 of your magical journey. Very good morning. Nice to see you all. Very nice. Yeah, it does feel great, hai na? The body feels it's opened up. Your mind is like now much more alert, much more aware. Like, okay, here I am. So yes, thank you. Thank you so much for being here. ठीक है जी. So आज के चैप्टर शुरू करने से पहले अगर आप में से कोई शेयर करना चाहते हैं, कल आपने अगर हील योर रिलेशनशिप्स वाला असाइनमेंट करा किसी व्यक्ति के लिए, तो how was it for you? How did you do it? If you would like to share, you can unmute yourself, you can take your name and आप share कर सकते हैं. नहीं तो अगर आपने कोई और मैजिक्स अनुभव करे अपनी लाइफ में इन दिस जर्नी एंड आप वो शेयर करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं. Good morning, Annie. गुड मॉर्निंग. I had done it for one of my uncle. I have written, I am grateful to you for the good moments you spent with me. Actually, this was the place where this was the person who had misbehaved sometimes in my childhood, and many times he used to come. I used to recollect those memories. So now when I wrote, so I felt ki हाँ, there is so much things what he has done good for me, and it is helped me to fade out what actually I had in mind. I'm grateful for the good things you did during my stay. I'm grateful during my wedding times, the moments of love and care you displayed. I'm grateful for the best time you shared during my last vacation with you. The fruits you brought for me, the money you spent for me for all the trips, and the tomatoes we fed to the dog together. I'm grateful for the money you spent for the total stay at your home. I'm grateful for your availability for every time I called you or I was with you. But during this, one more person just came in my mind. So I was thinking there was only one few bad memories which I have, and there is nothing else which I could recollect for that person. Nothing at all. Like I have no other moments rather than only that few times what bad memory was. So for that, what should I do? This is a question. Like, is it a stranger or is it a relative? It was a neighbor. A neighbor. But I was too small. Like I must be 6 years old. So I don't have any moments spent with that person. Okay. Understood. See, so you're talking about your neighbor. I don't know your neighbor. Say if I talk about my neighbor that I never really spoke to, but like I didn't like certain things about them. Like, see, आपने अपना बोला है तो मैं अपने वाले के हिसाब से एग्जाम्पल दे सकती हूँ. आपका तो मुझे नहीं पता है ना. Like for example, if there's a neighbor and I didn't like the way they acted or I didn't like the way they carried themselves and not very appropriate, I would say. है ना. अब अगर मेरे को लगता है यार उनको देख के मुझे, वैसे तो मुझे नहीं था, बट अगर हम आज का असाइनमेंट कल का असाइनमेंट उसके ऊपर करते तो I would have said probably, but I'm so grateful that rest of my neighborhood was so safe. I'm so grateful that उन अंकल को संभालने के लिए there were other neighbors that there were other neighbors who helped in dealing that out. I'm so grateful that Matlab, even if it's not for that person directly, maybe for other people who helped you through that situation, maybe you could look for that. Maybe. I don't know. I don't have this area, so it's a very much shot in the dark for me. No, I would like to put it in front of you. I don't feel any fear or any bad about sharing what is still there, and it should come out from my mind. Yeah. So it was some bad activity which he did with me,
and I was too small to understand it. But Yeah. now when it comes to me, I don't like it. I feel very annoyed or very bad about that person, that why he did that. Yes. Why it was me. Yes. Okay. I will have to ask my mother on this because she's dealt with something like that too. So how she did it, I'll have to ask her and let you know. But I think that will also not make much difference. Uh, maybe in that situation also, maybe today, if you are surrounded by wonderful people who take care of you, protect you, are only, so maybe for them you could do it, if not for that man itself. And I will have to ask for this answer and then get back to you. Yeah. But meanwhile, you could do it this way, like you could ask for other people and do it. For that, I'll have to ask him. Sure. Thank you so much, Annie. Thanks to understand. Thank you. All right. Yes. Anybody else? Anything else you'd like to share? Yeah, I would like to share. Uh, कल के assignment से related to नहीं, but seeing magical things around me. So basically, whenever I travel to my hometown or to any other place, I literally have travel anxiety. I don't know for what reason, but I do have. Okay, and that day when I was traveling from Bangalore to Ranchi, क्या हो रहा था कि बारिश हो रही थी काफी जोर से. So मैं सुबह सुबह उठी. I took down my notebook and then I started writing like blessings. ठीक है, हाँ चलो बारिश हुई है तो होने का था इसलिए हुई है. मैं अच्छे से चली गई एयरपोर्ट मेरे को. और it's like the area where my aunt lives, it's like you don't really get cabs easily. So I was like मैंने 5:30 में कैब बुक किया, मुझे उसी टाइम पे मिल गया. You won't believe. मैं पिछले 3 दिन से वेट कर रही हूँ ये चीज को शेयर करने के लिए. तो उस दिन every day was literally magical. It's like मुझे कोई travel anxiety नहीं हुई. then उसके बाद ठीक मैं एयरपोर्ट पहुंची. The road was clear, the sky was very clear. पूरा मतलब सूरज होता है ना कि it's like sunlight, वैसा आ गया था. उसके बाद फिर I was literally praying रास्ते में जाते जाते कि मेरा जो लगेज है ना वो 15 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए. We have that limit 15 kg. That was like 15 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस बाकी सब मैं अच्छे से पहुंच गई घर पे. So it was literally 13 kg. So this was like very magical, that very magical thing that happened, and you can make out from that from my voice. So yeah. बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे, वेरी गुड. वैसे Thank you, मैं thank बोलूं you. कि ये जो आप ए से वर्ड बोल रहे हैं उसको मत बोले, है ना, कि ये ट्रैवल ए वर्ड मुझे नहीं Okay, हुआ. okay. Don't say that. Just say I had a very smooth travel. I always wanted a smooth travel, and this time I got a smooth travel. Smooth or whatever word you want to use, but use that instead. But good, Okay. congratulations. Nice. Wonderful. Thank you. All right. Thank you. Thank you so much for sharing. Very nice. Good to see you all. Thank you. चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं. Today is the 16th day of this wonderful journey. बहुत मजा भी आ रहा है. आजकल तो सुबह शाम दोनों से ग्रेटिट्यूड चल रहा है, तो इट्स लाइक सुपर हाई एनर्जी. वंडरफुल. या सो कल हमने रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ा, है ना. कल के चैप्टर ने हमें बताया कि अगर आप अपने किसी रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, हील एनीथिंग दैट इज क्रिएटिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ एट द मोमेंट, है ना, तो उसके लिए क्या करें. Now we come to the next chapter, which is day 16, which is magic and miracles in health. कल अपने relationships पे काम किया, आज सेहत पे काम करेंगे. आप अपनी सेहत के किसी भी एस्पेक्ट पे, है ना, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, ऑर्गन वाइज, anything that surrounds health, उसमें अगर आप मैजिक्स चाहते हैं, मिरेकल्स चाहते हैं, आज का चैप्टर हमें सिखाएगा. लेट्स गो. Day 16, Magic and Miracles in Health.
Saint Augustine, who was a theologian and Catholic bishop, he has said, miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. Yeah, so it's very important to understand this. है ना, हम लोग इस बुक में अभी आए हैं, हम लोग अभी पिछले इतने दिनों से, महीनों से, सालों से इसका कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें लगता है अरे मैजिक हो गया, है ना, हमें लगता है अरे देखो मैंने बोला मेरे को अपना कैब मिल जाए, अरे यार वैसे नहीं मिलता है मगर अभी मिल गया। तो लाइफ में काफी ज्यादा ऐसे मैजिक्स होने स्टार्ट हो गए हैं, है ना। हो सकता है आपको, अरे मैंने तो पैसा मांगा था, मैंने तो सिर्फ इतना करा एंड लाइक दिस, पैसे ऐसे अपीयर हो गए, है ना। कल का जो हमारा दिवाली गेट टुगेदर था, उस that was about gold. That was about gold, about jewelry, about all of that, about gadgets, about. So a lady who was there was like, अरे after going back from the session, पता नहीं खुद ही मेरे मतलब मेरे पास गोल्ड का बैंगल का, I was like चलो let's buy that, and it out of nowhere, haven't done it in a long while, and suddenly gold started coming in my life. So things like that happen, right? Like magics, miracles, all of this. But हमें लगता है, oh my God, ये कैसे हो गया? Oh wow, this is so wonderful. But जिस यूनिवर्स में आप और हम जी रहे हैं, वो यूनिवर्स अपने आप में मिरेकल से भरा हुआ है। वो तो आज तक हमारी आंखों ने उसको ऑब्जर्व नहीं किया, हमने अनुभव नहीं किया, हमने वो नहीं किया, बट in this world it's a pretty common phenomenon, you know, miracles happen होना। मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जैसे अगर आपने वो मूवी देखी होगी हैरी पॉटर जैसी, तो उसके अंदर नहीं होता that you know that guy enters and there's like this whole world of magics and miracles and you know ऐसे करते हैं तो कुछ सामने appear हो जाता है, whatever you need. Similarly I feel कि वो सिर्फ कोई fictional movie नहीं है, that's exactly how this universe is. वो हमें दिख नहीं रहा है। Miracles are not contrary to nature, they're only contrary to what we know about nature. हाँ, मगर अब हम अपनी अगर knowing को increase कर रहे हैं, अपने experiences को, knowledge को, उसको expand कर रहे हैं, maybe we will open ourselves to more and more miracles. कुछ लोग होते हैं जो अपनी सोच को बिल्कुल छोटा बना के रखते हैं, तो उनके सामने मिरेकल्स कभी आते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। हम अपनी सोच धीरे धीरे करके थोड़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, थोड़ी एक्सपैंड कर रहे हैं, कुछ एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं, अपनी हेल्थ को लेके एक्सपैंड कर रहे हैं, अपने उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे मैजिक्स मिरेकल्स आपको दिखने शुरू होंगे। आज का चैप्टर अब आपको सिखाएगा कि मैजिक्स और मिरेकल्स अगर आप अपनी हेल्थ में देखना चाहते हो तो क्या करें। Miracles are not contrary to nature, but only contrary to what we know about nature. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time, because that is how it feels to have our birthright of full health. फुल हेल्थ मतलब इसने आपको बता दिया है कि अगर आप धरती पे पैदा हुए हो, आपको कैसे पता होगा कि आप फुल हेल्थ में हो। यू शुड फील हेल्दी, मतलब यू शुड नॉट बी लाइक फीलिंग ड्रेन्ड ऑफ एनर्जी और फीलिंग सुस्त, है ना। यू शुड फील एनर्जाइज, मतलब हाई एनर्जी, हाई जोश, नॉट लाइक यार सुस्ती आ रही है, उबासी आ रही है, थकावट हो रखी है, पेन आ रखा है, नहीं, फुल ऑफ हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम। आप किसी छोटे बच्चे को देखो, 1 साल 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा देख लो, 2 साल का बच्चा देख लो, जो भी आपने उसमें ऑब्जर्व करा है कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो नॉर्मली हेल्दी रहता है ना। मतलब ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स को खाना वाना खिलाता रहे, बट नॉर्मली वो स्वस्थ रहता है, उसकी एनर्जी हमेशा फुल ऑन चार्ज। मतलब आप बच्चे के साथ खड़ा हो जाओ और बोलो भाई टीवी देखते हैं, वो नॉर्मली बच्चा ना उसको भागने का मन करता रहता है ना, वो इधर से उधर भागेगा, इधर से उधर भागेगा, ऐसे टॉयज के साथ छन 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 करता रहेगा कि मतलब मेरे साथ ये खेलो, मेरे साथ ये खेलो, मेरे साथ वो खेलो। वो तो अलग बात है, पेरेंट्स के अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती इसलिए उसके सामने फोन रख देते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रही, बट एक नेचुरल बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत हाई होती है। यस नो,
जो अभी रिसेंटली इस धरती पे आया है, उसका एनर्जी लेवल ना बहुत हाई होता है। फर्क नहीं पड़ता आप काम करके आए हो कैसे करके आए हो, उसको अगर खेलना है तो खेलना है, उसको अगर भागना है तो भागना है। और वो फुल स्पीड भागता है, वो छोटा मोटा नहीं भागता है, वो फुल स्पीड भाग रहा होता है बच्चा, फुल ऑफ हैप्पीनेस मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर बच्चा नॉर्मली उठा हुआ है ना और उसका खाना टॉयलेट ये सब चीजें टेकन केयर ऑफ है, तो वो नॉर्मली खुशी रहता है। और उसकी नींद, खाना और टॉयलेट, ये 3 चीजें अगर टेकन केयर ऑफ है तो वो नॉर्मली बच्चा खुश रहेगा, है ना। आप उसके सामने बैठ जाओ, वो छोटा सा वो कोई टॉय ऐसे छन 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 कर लो, वो बच्चा इतनी जोर की हंसेगा कि मतलब उससे ज्यादा खुश इंसान नहीं है इस धरती पे कोई। यस नो, उसके सामने आप सिर्फ चले जाओ, उसके सामने एक छोटी सी स्माइल कर दो, वो इतनी जोर की हा 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 करके हंसने लग जाती है। यस, उसके दांत वात कुछ नहीं, ऐसे स्माइल करके हंसने लग जाता है बच्चा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हैप्पी रहता है। उस बेचारे को सिर्फ गोदी में उठा लो, ऐसे ऐसे कर लो, वो उसी में इतना खुश हो जाता है कि वाह पता नहीं क्या जन्नत मिली। यस नो, आपके घर में भी तो बेबीज कभी देखे होंगे आपने, है ना। दैट्स हाउ इट इज। आपको जो जब इस धरती पे भेजा था तो इसी ट्यूनिंग के साथ भेजा था। इट इज योर बर्थ राइट टू हैव फुल हेल्थ, and this is what full health means. You should be happy most of the time. You should be beaming with joy most of the time. You should feel energized, energetic most of the time. However, if you do not feel that way, आपने कुछ करा है. Okay? The reality, however, is that a lot of people don't feel this way very often, if ever. Many people are dealing with illnesses, problems with the functioning of their body, or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of less than full health. Gratitude is one आप अपनी लाइफ में The fast- हेल्थ के एरिया में, आप अपने हेल्थ के एरिया में कौन सी जगह में मैजिक्स और मिरेकल्स डालना चाहते हैं, उसके ध्यान से फिर आज की चैप्टर है ना। आप अपने आपको मेंटल हेल्थ के अंदर यू वांट सम स्टेबिलिटी और सम कामनेस, पीस ऑफ माइंड, व्हाट यू वांट, है ना। अपनी फिजिकल हेल्थ के अंदर, वाइटैलिटी के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर, जो भी आपके लिए है ना, आपके हाथ, कान, टांगे, आंखें, सबसे पहले उसने कहा था ना कि ये चैप्टर्स आगे बढ़ बढ़ के ऐसे भी करेंगे जिनकी आई साइट में दिक्कत है वो ठीक हो जाती है, सुनने में दिक्कत है वो ठीक हो जाती है, आपको कहीं पे मोल्स, स्कार्स, पिंपल्स, हेयर फॉल, वेट, एनीथिंग यू कैन थिंक ऑफ, today's chapter has the potential to cause magics and miracles in that area of your life. ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happen are simply the result of full health being restored instantly in the human body, where before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website, www.secret.tv/stories. Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Yeah. मैं जो एक बार कंसल्ट कर लूंगा। यस, सो आपने हो सकता है अभी भी अपनी हेल्थ को टेक केयर करने के लिए यू माइट बी से डूइंग योगा, हेल्दी खाना खा रहे हो, जिम जा रहे हो, है ना। ये सारी चीजें हो सकता है आप कर रहे हो, सुबह उठ के आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आपका रूटीन है आप अपने उसके लिए करते हैं।
उसके अंदर ही सिंपली कह रहा है कि आपका जो एग्जिस्टिंग रूटीन भी है ना, आप हो सकता है कोई दवाइयां ले रहे हो अपने उसके लिए, वाइटामिन ले रहे हो, irrespective whatever your routine is at the moment, आप उसके अंदर ही जब ग्रैटिट्यूड को कंबाइन करते हैं, उसको डालते हैं, तो उसका रिजल्ट कहीं ज्यादा बेटर हो जाता है। आप कोई खाना खा रहे हैं उसके साथ कंबाइन कीजिए, कोई वाइटामिन ले रहे हैं उसके साथ कंबाइन कीजिए, whatever it is, anything that you might have chosen to do, it works hand in hand with that. When there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feelings with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction. इसने आपको अब ये भी बता दिया है कि आप अगर अपनी उस बीमारी या वो जो भी चीज है उसके बारे में अगर आप भी नेगेटिव फील कर रहे हैं कि यार ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं सब क्यों नहीं बाहर आ पा रही, व्हाई मी, और एनी काइंड ऑफ नेगेटिव फीलिंग यू हैव एसोसिएटेड विद दैट लेस हेल्थ, उससे आपकी हेल्थ कभी बेटर नहीं होगी। उसने आपको बता दिया। हाँ, जायज सी बात है, अगर आप फील बेटर नहीं कर रहे हैं तो आपका उसके बारे में नेगेटिव फील करना माइट बी द फर्स्ट रिएक्शन दैट कम्स अप, but you need to understand that that will not lead anywhere, definitely not in the longer run. इसलिए you've got to replace the negative feelings with good feelings. अभी सीखेंगे कैसे, क्या gratitude is the easiest way. About their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there is something you don't like about your body, you're not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk. Yes, very very important है ना। आप अपने आप को शीशे में देखा, आपने सुबह शीशे में देखा, या जब भी आपने अपने आप को शीशे में देखा, एंड यू लाइक अरे यार देखो यहाँ से कैसे मोटी हो गई हूँ, या यहाँ पे ऐसे डार्क सर्कल्स आ रखे हैं, या बाल कैसे हो रखे हैं, या आपको पता होगा आप अपने आप को शीशे में क्या कहते हैं। आप में से कौन कौन जाने में अनजाने में मनी से मन ही सही, आप अपने आप को when you look in the mirror you say something like you are complaining about something about yourself. Yeah, why do you look like this? Why are you so short? Why don't you work out? You could look so much better. You look so weird. How many of you complain? And look how much weight I put on. See, and आपको नहीं पता आपकी अपने बारे में ये बात करना है ना, अरे लोग कैसी लग रही हूँ, उससे आप ही अपने उस अपीयरेंस को जो आप दिख रहे हैं, आपकी हेल्थ को और नीचे और नीचे और नीचे कर रहे हैं खुद ब खुद। अपने आप को मोटा बोलना से आप पतले नहीं हो जाओगे, उससे नहीं होगी। Whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. Whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to access feelings of gratitude when sick or in pain. But even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness, and we are going to take a triple-pronged approach to accelerate the results. Step 1. Health you have received in the past. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy,
and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude for those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. ठीक है, तो ये आज का जो चैप्टर है मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, ये इसका असाइनमेंट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सबसे पहले उन पॉइंट्स, उन मोमेंट्स के बारे में जब पास्ट में आपके पास बहुत गुड हेल्थ थी, ऐसे कोई भी 3 मोमेंट्स को आपने याद करना है और उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना है. आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. आप अपने कोई बचपन के दिन, स्कूल के दिन, मे बी आप कोई स्पोर्ट खेला करते थे, कोई भी ऐसे 3 दिन आपने, कोई ऐसे 3 क्षण आपने याद करने हैं व्हेन यू फेल्ट ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ. मतलब your health was at its peak, it was the best, you could do everything you would have wanted to do, your energy was super high, you were extremely happy. आप हो सकते हैं किसी छुट्टी पे हो, where your health was superb. तो ऐसे कोई भी 3 मोमेंट्स याद करें एक एक करके, है ना. सबसे पहले कौन सा? बचपन में कुछ हुआ, मे बी आप कोई स्पोर्ट खेलने गए थे, कंपटीशन में गए थे एंड आपने बहुत ही वंडरफुल परफॉर्मेंस करी, तो उस मोमेंट को याद करें. उस टाइम पे आपकी बॉडी में कैसी फीलिंग्स थी, how was your sensation, how was your body reacting at that point in time, and then give your heartfelt gratitude. Thank you उस ब्यूटीफुल टाइम्स के लिए, थैंक यू मेरी उस हेल्थ के लिए बहुत बहुत थैंक यू. तो ऐसे ही आपने कोई भी 3 इंस्टेंसेस जो आपके पास्ट में हुए, उनके लिए आपने सचमुच लाइक लिव देम व्हेन यू वर एट द पीक ऑफ योर हेल्थ एंड गिव योर ग्रैटिट्यूड. ये स्टेप 1 है. अब स्टेप 2 पढ़ते हैं. Step 2. Health you are continuing to receive in present. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. Abhi, at this moment, as of 7:29 a.m., what are the 5 things of your health that are working? Obviously, आप जब assignment करेंगे, आप उस समय का present moment देखिएगा कि what are the 5 things that are working? What are the 5 things that I'm grateful for? है ना, maybe अभी मेरी आंखें काम कर रही हैं, I'm grateful for them. मैं ये स्क्रीन देख पा रही हूँ, अपने सामने चीजें लगी हैं उसको देख पा रही हूँ, लोगों को देख पा रही हूँ. I'm grateful for that. maybe I'm grateful कि मेरे कान काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को सुन पा रही हूँ, लोगों को सुन पा रही हूँ, पंखे की आवाज को सुन पा रही हूँ, है ना. मेरे कान बहुत ही हेल्दीली काम कर रहे हैं, उसका बहुत बहुत शुक्रिया. मेरी आवाज काम कर रही है, मैं बोल पा रही हूँ, कम्युनिकेट कर पा रही हूँ, what I want to say एक्सप्रेस कर पा रही हूँ. तो इस आवाज का बहुत बहुत थैंक यू. आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट, है ना. इस तरीके से कोई भी 5 चीजें जो भी आप प्रेजेंट में एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए अपना ग्रैटिट्यूड दे दें. Step 3. Health you want to receive in future. You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Yeah. So अगर आपने पहले 2 parts of the assignment वैसे करे the way it has asked us to, then comes your future. जब आपने अपना पास्ट और प्रेजेंट भर लिया, जो आपको अस्सी में मिला गया है, अब आप कहते हैं ना फ्यूचर में कुछ मांगने लायक एलिजिबल बने हो, तो आपने अपनी उसमें कोई भी एक चीज चूज करनी है, एनी वन थिंग दैट यू वांट टू इम्प्रूव, एंड आपने उसकी आइडियल स्टेट के ऊपर काम करना है. सो आई वांट सम ऑफ यू टू राइट डाउन इन द चैट कि व्हाट इज दैट वन एरिया ऑफ योर हेल्थ on which you are going to use that assignment, today's assignment. Write them in the chat box.
What is the one area on which you want to create magics and miracles in your health? What do you want to improve? What is your ideal state? Where do you want to reach? Yes? Okay, let me read. Okay, you want your mental health, okay, but mental health mein what do you want? Mental health doesn't really mean anything. Mental health is आपके दिमाग की health कैसी है? Doesn't really mean anything, right? How do you want it to be should be the answer. You want to reach your ideal weight, 50 kgs, very good. And somebody wrote weight. That's not an ideal state. I want to know your ideal state. I want you to know, I want you to tell me your ideal state, that this is how you want to be. Okay, your face is clear and glowing, wonderful. Okay. Peaceful state of mind, like Shant बैठे हो. Okay, all right. और बाकियों का क्या है? कहाँ चाहिए आपको अपना magic and miracle in health? How do you want it? No, you have to do only one, not three. Feeling good all the time, even at every moment of life. Okay, like you want to feel good mentally, you want to feel good. Okay. You want to have be 70 kgs, okay. You want to have biceps, that's wonderful. You want somebody's wrote down injury of tailbone to be cured. Manisha ji, that's not an ideal state, right? To be cured is not an ideal state. अगर cure हो जाएगी तो कैसी दिखेगी? उसे ideal state कहते हैं. तो वो बताएं. You want to be 58 kgs, Pooja ji, okay. You want healthy and shiny face and hair. वो कैसे दिखता है? Healthy and shiny face and hair. Shiny hair तो समझ में आया. Shiny face का मतलब क्या होता है? मतलब हो सकता है ग्लो आ जाए, वो भी ये चाहते हैं. Healthy hair. मतलब मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको क्लियरली पता हो कि वो दिखता कैसे है. किडनी में क्या इन किडनी आर, ये कोई मतलब ठीक से तो लिखो आइडियल स्टेट क्या है. मेंटल हेल्थ ऑल वर्क गुड, वेरी नाइस. हाँ, ये एक इस तरीके से लिखो अपनी आइडियल स्टेट कि जिस इंसान को दूर दूर तक नहीं पता आप कौन हो और आप क्या करते हो, उसे भी पढ़ के समझ में आ जाए कि इनको ये चाहिए. एक बहुत सिंपल शब्दों में बात करो यार. वर्क ऑल गुड है. शुगर लेवल नॉर्मल, ठीक है, ओके. क्लियर फेस एंड शाइनी हेयर, थैंक गॉड. नाइस टू रीड, थैंक्स. गुड. और किसी का कुछ आइडियल स्टेट? बाकियों का आइडियल स्टेट क्या है? क्या चाहिए आपको जिसके लिए आपकी आज थर्ड पार्ट ऑफ द असाइनमेंट करोगे? व्हाट इज इट दैट यू वांट? दैट्स नॉट अ गुड आइडियल स्टेट, सुमिता जी. सब बढ़िया फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली इज नॉट एन आइडियल स्टेट. आइडियल स्टेट इज समथिंग यू कैन पुट योर फिंगर ऑन कि ये हुआ कि नहीं हुआ. If it's not measurable, it's not a dream. Somebody else, what is your ideal state? जिसके ऊपर आप आज काम करोगे. And it needs to be one thing. One thing, like आपको पता चल जाए कि मैं अगर बहुत ज्यादा laugh कर रहा हूँ and I'm happy, that's my ideal state. And my ideal state is I'm laughing so much. That could be your ideal state. Your ideal state could be like some people wrote about their weight, some people wrote about their hair. बाकियों का कोई आइडियल स्टेट नहीं है, कुछ नहीं चाहिए. सिर्फ एनी की आवाज सुनने आए हैं हम इस क्लास के अंदर, एनी और चेतना जी. You want to be 60, your ideal weight, okay. अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगी, आप लोग 60 kgs, 50 kgs, 54 kgs वेट लिखते हैं, वो भी अच्छी बात है. बट आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन, क्या आपका सचमुच ड्रीम आपका वेट है या आपका ड्रीम है द वे यू लुक? दोनों अलग चीजें होती हैं. दोनों अलग चीजें होती है. वेट इज नॉट नेसेसरली डायरेक्टली रिलेटेड टू द वे यू लुक, है ना. यू वुड बी व्हाटएवर kgs, बट यू वुड, you know, so just see for yourself. जब आप अपना ड्रीम बनाए,
What is your dream? You know, maybe आप बचपन में या जवानी में एक certain way से दिखते थे. Maybe आपका सपना है, I want to look like that again. Right? So just be clear. What is your dream? Weight or the way you look? They're not the same. Okay. Somebody wrote clear skin, healthy hair. Okay. You wrote healthy ligaments for my shoulder. Okay. I don't know what that means, but if that's what you want, good. And then अगर आपके ligament shoulder के healthy हो गए, तो क्या कर पा रहे हो आप? मतलब what would you be able to do? Should be your ideal state, right? Like maybe आप, I don't know, maybe you can lift, maybe you can, I don't know how, क्या क्या आप कर पाएंगे अगर वो healthy हो गए. But आपकी healthy state वो होनी चाहिए, जैसे कि वो हो गए ना, आप वो काम कर पा रहे हैं जो भी healthy ligaments for shoulder वाले लोग कर सकते हैं. Look beautiful, smart, slim, trim. I don't know what that means, okay? I don't know what looking beautiful means. Beautiful means different things for different people, so I don't know what that means for you. Okay, so my request to everyone is that आप अपना जो भी ideal state बनाए, make sure it's clear. Make sure when you close your eyes, you have a clear image of what it looks like. If you don't have, it will not work. Okay, very clear image. ये चाहिए मेरे को. So today, choose one thing that you want to improve about your body. एक चीज, तीन चीज नहीं, एक चीज आपने choose करनी है. And then we're going to use gratitude's power for it. चलिए. Very often, when a person is diagnosed with an illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will also research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal state for the area of your body that is unwell and give our thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together. So we magnetize it to us in one fell swoop. इसने आपको ये भी बता दिया कि नॉर्मली कोई व्यक्ति क्या गलतियां करता है जिस वजह से उसका वो हेल्थ में जो ड्रीम है वो सिर्फ ड्रीम बना रह जाता है, वो सच नहीं होता है. इसने खुद बता दिया. आप जितना ज्यादा अपने उस चीज के बारे में कंप्लेन करोगे, नॉर्मली आप अपनी हेल्थ के बारे में बात भी कब करते हो? जब वो ठीक नहीं चल रही होती है ना. मतलब अरे देखो बॉडी कैसे अकड़ी हुई है, या देखो वेट कितना पुट ऑन हो गया है, अरे देखो बाल कितने रफ हो गए हैं, यहाँ पे ऐसे कितनी हेयर फॉल हो रही है. नॉर्मली टॉक ऑल्सो अबाउट हेल्थ व्हेन इट्स नॉट गोइंग वेल, बिकॉज ऑफ विच इट विल नेवर गो वेल. आपने ऐसे लोग देखे हैं जो हमेशा कभी कोई बीमारी आ जाती है, अच्छा वो बीमारी ठीक हो गई तो दूसरी बीमारी आ जाती है, वो ठीक हो गई तो उनको मतलब कुछ ना कुछ बीमारी कभी ना कभी तो सेम टू सेम चल ही रही होती है. जो वेट वाले लोग होते हैं उनको हमेशा वेट सता ही रहा होता है. वेट कम हो गया, वेट ज्यादा हो गया, वेट और कम हो गया, अरे आई पुट ऑन वेट, आई पुट ऑन. द मोर यू आर टॉकिंग अबाउट दैट, द मोर इट विल, कहते हैं ना, टाइटन इट्स ग्रिप. So first thing is to understand consciously कि यार अपने मुंह से अपनी हेल्थ के बारे में कंप्लेन करना बंद करो. आपको 1 मिनट 2 मिनट किसी की सिंपैथी मिल जाएगी, but that will not really create much difference in your health. Gratitude, however, for the ideal state जो आप फाइनली चाहते हो. प्रॉब्लम के बारे में क्यों बात कर रहे हो? फाइनली क्या चाहते हो उसके बारे में बात करो ना. For any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together so that we magnetize it to us in one fell swoop. आपको नहीं पता, आपका ग्रेटिट्यूड, कल एक अंकल आए थे शाम में जो दिवाली पार्टी हो रही है, तो he simply said I use gratitude now for any time. Like मेरे कोविड के टाइम पे दांतों का दर्द हो रहा था, and you know I didn't know which dentist would be open and I didn't want,
So I just did gratitude for my teeth, and my teeth, like, final result clear था, दांत healthy, jaws healthy, gums healthy, सब healthy, बढ़िया खा पी रहा हूँ, आसानी से खा पी रहा हूँ. Ideal state पे focus करा, उसके लिए भर भर के gratitude किया, तो शाम तक ही वो जो उसके अंदर पहले पेन था सब गायब. कोई इंसान सुबह उठा, अरे सर दर्द हो रहा है, सर भारी फील हो रहा है, क्या नॉर्मली करते हैं, दुनिया जहान को, अरे एक्चुअली ये ना वापस आ गई बीमारी, इट्स सो दिस दैट. अरे व्हाई यू टॉकिंग अबाउट इट? इफ योर ड्रीम इज कि मैं आराम से शांति से बैठ रहा हूँ, मेरा दिमाग ठीक से काम कर रहा है, इट्स ऑल हेल्दी, फंक्शनिंग वेल, रिलैक्स, द नर्व्स इन माय ब्रेन आर रिलैक्स, तो उसके बारे में बात करो ना. बात नहीं करनी तो अपना ग्रेटिट्यूड तो उसी के ऊपर दो ना, कि मैं आराम से बैठा हूँ, my mind's relaxed, everything is relaxed, so chill. Give your gratitude for that, for the ideal state that you want, and you don't know how it will come into your life, but it will. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and sift out all the waste products from your body. हाँ, तो जैसे If you want to magically हेल्थ में लिखा कि मैं अपनी किडनीज के लिए करना चाहती हूँ, तो आज के चैप्टर ने आपके लिए एग्जाम्पल भी दिया है ना, इंस्टेड ऑफ ये नहीं वो नहीं, सिंपल. आप चाहते हैं आपकी किडनी आपका खून साफ कर रही है, बहुत अच्छे से साफ कर रही है, एंड यू नो आपकी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन बहुत ही हेल्दीली फंक्शन कर रहे हैं, तो गिव योर ग्रेटिट्यूड फॉर दैट ना. restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect, supple, and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight that you want to be. Then imagine yourself at that ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. Whatever it is that you want to improve, first imagine yourself with the ideal state and then be grateful for the ideal state as though you have received it right now. Hippocrates, who was the father of Western आपने medicine, अभी ये कह रहे हैं, पहले तो भैया अपने लिए आइडियल स्टेट फिगर आउट कर लो, फिर उसके बाद आपने मिनिमम 1 मिनट आराम से शांत से बैठो, आंखें बंद करो और विजुअलाइज करो, कल्पना करो, इमेजिन करो जैसे वो आइडियल स्टेट आपको मिल चुकी है एट दिस मोमेंट, एंड हाउ आर यू फीलिंग, है ना. जैसे अगर आपको है कि मेरे शोल्डर्स, लिगामेंट्स, जो भी आपने बोला, तो मे बी नाउ यू आर एबल टू गो टू द जिम एंड लिफ्ट. maybe now you can help your family at your home, you know, कि chairs आप ऐसे उठा के एक जगह से दूसरी जगह अपने shoulders के थ्रू lift कर पा रहे हैं. मुझे नहीं पता आपकी क्या visualization है ना. maybe now you can do some yoga activities much more easily because your shoulders got a lot of strength and you can do all of that, है ना. give your gratitude for it. अगर आपका है ड्रीम की यार आई वांट टू लुक अ सर्टेन वे, आई वांट माय फिगर टू बी अ सर्टेन वे, तो इमेजिन योरसेल्फ, सी योरसेल्फ कि आप अभी फिर किस तरीके की ड्रेसेस पहन रहे हो, किस तरीके का आपका बॉडी स्ट्रक्चर है. इमेजिन योरसेल्फ लाइक दैट, है ना. किस कलर्स के कपड़े पहन रहे हो, लोग आपको कैसे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, आप कैसे ब्लश कर रहे हो कि ओ वाओ सो स्वीट ऑफ यू टू कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, सो काइंड. Think about it. What is your ideal state that you want to reach? What is it? है ना. आपकी किडनीज अगर अच्छे से काम कर रही है तो आप कैसे मस्त अब कुछ भी खाना खा रहे हो एंड यू लाइक थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, सिर्फ आपकी वजह से, मतलब आपने चमत्कार कर दिया कि मेरी किडनीज खुद ब खुद अंदर अपना सारा काम कर रही है, खून साफ कर रही है, सब कुछ कर रही है. बहुत बहुत थैंक यू. आइडियल स्टेट, विजुअलाइज, कल्पना करें as though you have received it right now. is
Natural forces within us are the true healers of disease. You can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. हाँ, आपके आंखों में चश्मा लगा है, आपको है कि यार ये आपको आंखों से क्लियर नहीं दिखता, कान से ठीक से सुनाई नहीं देता, आप चाहते हैं कि उस चीज में बदलाव आए, है ना, आप आंखों से ही बहुत अच्छे से अपनी दुनिया अनुभव कर पा रहे हैं, एंड उसके लिए आप that's what you want. तो मतलब visualize yourself that you are able to see the world around. ठीक है, इसी तरीके से आपने देखो, it's very important to understand, ये जो चैप्टर है ये सिर्फ ये नहीं कि रोंडा बर्न ने बोला कि ये 3 स्टेप्स करने से आपकी लाइफ में हेल्थ आ जाएगी तो हेल्थ आ जाएगी। मैंने अपनी लाइफ में भी देखा है, मैंने अपनी क्लोज फैमिली, अपनी मदर, अपने फादर, अपने नाना, अपने दादू, अपनी दादी, अपने आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने ये प्रैक्टिसेस करी, जाने में अनजाने में, मतलब उन्हें नहीं पता था कि मैजिक बुक नाम भी कोई चीज है, बट हम बताते थे कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, उन्होंने किया, अरे आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए हो, अरे हम लोग यहाँ पे घूमने जाएंगे। व्हाट डज दैट मीन? यू टॉकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर, यू टॉकिंग अबाउट द फाइनल रिजल्ट यू वांट टू रीच। अरे ये तो बिल्कुल ठीक हो गया है जी, हम लोग इकट्ठे मिलेंगे, यहाँ पार्टी करेंगे। मेरे को याद है couple of years, I think 3-4 years back, नानू के हार्ट में कुछ हुआ था and doctors were like, he's got to get this surgery done, that surgery done, all of that. My Nanu was clear, like, listen, I'm healthy. आपने मुझे जो दवाई खिलानी है खिला दो, सर्जरी मैंने नहीं कराई। वो उनकी, देखो वो उनका बिलीफ सिस्टम था। I'm not saying you need to copy paste, I'm just sharing what he did. And a doctor was like, नहीं नहीं, बिना सर्जरी के तो आप रह ही नहीं पाओगे, हो ही नहीं पाएगा। His belief system was clear that I'm healthy, I'm very healthy, and the way he conducted himself, everything was like, I am healthy. ये कुछ गलत खा पी लिया होगा, ठंडा पानी पी लिया होगा, जिस वजह से वो कुछ नर्व अंदर पतली हो गई होगी या whatever, but I'm a healthy man, full stop. हाँ, इसको खोलने के लिए कोई दवाई ववाई देनी है तो दे दो, मैं खा लूंगा, बट मुझे पता है मैं इसके बाद मैंने यहाँ घूमने जाना है, मैंने आगे यूरोप में जाना है, मेरे बच्चे कनाडा जा रहे हैं तो उनके साथ भी मिलूंगा, सब कुछ करूंगा, ये सब करना है मैंने, तो मेरा दिल बहुत चंगा है जी। And he was clear. Doctors said whatever they had to say, because of which it's been 3-4 years now. Nanu didn't get anything done, and you meet him today, full of life, man. उनसे ज्यादा हेल्दी इंसान does his own thing himself. अपना खाना भी खुद खाना बनाना, चाय बनाना, अपने कपड़े खुद धोते हैं, सब कुछ अपना खुद करते हैं वो, मतलब अपना बाथरूम भी खुद क्लीन करते हैं, सब कुछ खुद करते हैं वो अपना। He's like, I'm a very healthy man. I can take care of myself. I can do all these things for myself. I am healthy, because of which he is healthy. So आपकी bigger picture क्या है? आपकी ideal state क्या है? उसको अपने सामने रखना बहुत जरूरी है। But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about the current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing yourself with the ideal state you want, and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health, other than taking good care of yourself physically, is to continue to be grateful for your health. हाँ, मतलब physically, मतलब योगा करो, walk करो, पानी पियो, है ना, ये सब चीजें करो, मगर उसी के साथ ही साथ combine that with enough empty gratitude in your life with whatever it is that you're doing. And I have seen that the recovery rates are much higher. You reach your dream goal much faster जब आप इसको इस तरीके से करते हो, है ना। जो इसने बोला मत करो, आपने वो नहीं किया, और जो उसने बोला करो, वो आपने करा। Magic practice number 16, magic and miracles in health. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, recollect 3 separate times throughout your life when you felt on top of the world, and give sincere thanks for those times.
Number 3, think about 5 functions of your body that are well, and one by one, give thanks for each one. Number 4, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for this ideal state. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Great. So thank you everyone. ये हमारी आज की असाइनमेंट है. सबसे पहले हमने अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करी, फिर एंड में मैजिक रॉक करा और बीच में पास्ट में जब आपकी हेल्थ बहुत वंडरफुल थी, ऐसे कोई भी 3 पलों को आपने याद करके अपना थैंक यू देना है. फिर प्रेजेंट में एट दिस मोमेंट कोई भी 5 चीजें जिसमें आप हेल्थ का गिफ्ट एंजॉय कर रहे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू करना है. मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये सारी जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का करेंगे, इसको एक ही गो में करें. आराम से शांत कमरे में बैठ के करें, किसी के साथ ना करें, है ना. अगर आपको लगता है साथ ही साथ बोल के आपको ज्यादा फीलिंग्स आ रही है तो वैसे कर लें, है ना. कभी कभार सिर्फ सोच के दिमाग भटक जाता है, तो आप अगर साथ में बोल बोल के भी करेंगे कि उस पल के लिए थैंक यू, उसके लिए थैंक यू, तो आप उस प्रकार भी इस असाइनमेंट को कर सकते हैं. एंड देन उसके बाद आपने फ्यूचर का कोई भी एक चीज जो आप आइडियली चाहते हैं वो आपने करना है, एंड उसके लिए अपना ग्रेटिट्यूड करना है, और रात में सोने जाने से पहले मैजिक वॉक. तो चलिए, ये हमारा आज का चैप्टर था. एंड मैं आपको बता रही हूँ, इस चैप्टर से लोगों ने ऐसे ऐसे अपने ड्रीम्स हेल्थ के एरिया में पूरे करे हैं जो जहाँ पे डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए. आपने अगर सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उसके अंदर भी वो शेयर करती है ना. एक लेडी शेयर करती है अपनी हेल्थ के बारे में, एक जेंटलमैन शेयर करते हैं कि ही मेट विद एन एक्सीडेंट, जहाँ पे डॉक्टर्स भी नहीं. क्यों? क्योंकि उनको अपने अंदर से क्लियर था, है ना. उसको क्लियर था कि यार मेरी बॉडी नहीं काम करी, बट नहीं, मैंने तो क्रिसमस तक खुद पैरों से चल के जाना है. तो उसकी आइडियल स्टेट क्लियर थी कि मेरे को यहाँ पहुंचना है. आप देखो आपकी आइडियल स्टेट क्या है. मे बी आपने किसी शादी के फंक्शन पे जाना है ना. मे बी यू लाइक, अरे इस शादी पे ये वाला लहंगा पहनूंगी, बहुत सुंदर लगूंगी, इसलिए मुझे ऐसा ऐसा दिख रहा है. आपको पता होगा आपकी क्या आइडियल स्टेट है ना. मे बी आपको ऑफिस जाना है एंड यू लाइक, अरे ऑफिस के अंदर आई वांट टू बी. आपकी आइडियल स्टेट क्या है. मे बी यू लाइक, अरे नहीं, मेरे को अपने हस्बैंड से कॉम्प्लीमेंट चाहिए, दैट्स व्हाई आई वांट टू लुक लाइक दैट, है ना. व्हाटएवर योर हेल्थ इज. मे बी आप ये लाइक, अरे यार मेरे बच्चे इतने खुश हो गए हैं कि यार वाह मम्मी आपकी किडनी तो बहुत हेल्दी हो गई है, मजा आ गया मम्मी, ये तो जादू हो गया, ये तो मतलब आपकी किडनीज खुद ब खुद देव रिस्टोर्ड देयर टू देयर फंक्शन एंड देयर वर्किंग वंडरफुली वेल. कमाल, थैंक यू यार, ये तो सचमुच मैजिक्स. आपकी आइडियल स्टेट क्या है? आप क्या चाहते हो? आप देखो, आज के चैप्टर ने हमें सिखाया, और आज के चैप्टर ने ये भी बता दिया, अगर हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसमें आपको सचमुच अभी बहुत ज्यादा मैजिक्स की जरूरत है, इसने बोल दिया दिन में कुछ और काम मत करो. इसने सचमुच बोला और कुछ मत करो. अपने दिन में सिर्फ और सिर्फ अपनी आइडियल स्टेट को ही विजुअलाइज करते रहो जैसे वो आ चुकी है, और कुछ काम मत करो. अपने आप को सिर्फ उसी उसमें करो. स्टेप योर सेल्फ इन टू दोज शूज लाइक इट्स ऑलरेडी हैपेंड. So this is today's chapter. Thank you for being in today's class. Before we take questions or sharings, अपने hands join करेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपनी सेहत के अंदर, है ना, बचपन में कोई भी ऐसा मोमेंट याद करेंगे जब आपको you felt on top of the health, और उसके लिए दिल से ग्रेटिट्यूड देंगे. ऐसे इस मोमेंट को याद करें. Thank you. Thank you everyone for being in today's session.
थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड एंड अपने सेहत के अंदर मैजिक्स और मिरेकल्स लाने के लिए। अगर आप में से कोई कुछ पूछना चाहते हैं या कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपना नाम ले सकते हैं और कह सकते हैं। If you want to share Hi, something. Annie. Good morning. Good Good morning. morning, Sneha ji. Very good morning. Good morning. अरे आप आज भी बहुत प्यारे लग रहे हो, मस्त। मेरी बेटी भी ऐसे ही लगती थी, आपके जैसी, स्लिम और मस्त। अब इसकी शादी हो गई, मुंबई में है वो। Thank आपके you. जैसे लगती थी, सेम पूजा भट्ट जैसे। अच्छा, यू लुकिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। thank मैं you. एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी। मैं Yes. आपके पापा से नहीं पूछ पाई, मेरे को अच्छा नहीं लगता है पूरे तो कोई हाँ, हम लोग के पास जो घर में, मतलब मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल रहता है। हम लोग के पास कोई भी घर में सामान आता है, मतलब मेरे को बेटी भेजती है मुंबई से, तो उसके लिए भी हमको उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स उस टाइम निकल जाता है। तो एवरी टाइम मतलब हम लोग को एवरी मोमेंट हमको उसको शुक्राना करते रहना है। हाँ करिए, बढ़िया। अगर आपको और ऐसे ऐसे गिफ्ट्स चाहिए अपनी लाइफ में तो करते रहो उसके लिए शुक्राना, है ना, जो भी वो भिजवा रहे हैं। अगर आपको चाहिए और तो वो, हाँ, बेटी ही करती है सब, हम लोग का घर का वो ही करती है हमारा। बस करते रहो। वो खुद सीए है, मुंबई में जॉब करती है, तो वही हम लोग का पूरा घर वही चलाती है हमारा। बहुत अच्छे, फिर बहुत भर भर की ग्रेटिट्यूड कीजिए आप, फिर और बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से आपका घर चलेगा, है ना। हाँ हाँ, थैंक यू। मेरे को वही ना थोड़ा ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे को बस एक क्वेश्चन आप और। आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड करेंगे उतना बेहतर है, जितना अच्छा ज्यादा करेंगे उतना बेहतर। अच्छा, थैंक जो अभी ना पापा ने बताया कि हम लोग चेक्स वगैरह पे लिखना चाहिए। अभी हम लोग तो हाउस वाइफ है, तो हम लोगों के पास तो कोई चेक्स नहीं रहते, तो उसके अभी लिए फिर मेरा हमको। चेक्स का चैप्टर नहीं आया, मेरा चेक्स का चैप्टर कल आएगा तो उसकी हम कल बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ जी, किसी को आज की चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं? Good morning, Annie. Good morning. Annie, I'm so sorry, I missed what I wanted to actually share. I'll just come back to you. That's okay. Yes. और किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? मैम नहीं, मेरे को एक और क्वेश्चन है। मेरे को ना नीज में थोड़ा ये है, चल नहीं पाती हूँ प्रॉपर, मतलब जैसे बच्चा चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, वैसे। तो अभी आपका मैं इसको, आइडियल स्टेट क्या है? मतलब मैं नहीं समझ पाई। फाइनली क्या चाहते हो? मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं ना, मतलब जैसे मैं पहले भागती थी, चलती थी, दौड़ती थी, आई वांट टू डू दैट सेम। Yes, तो आज का असाइनमेंट उसके लिए करो, है ना। सबसे पहले तो पास्ट में जब आप भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, बचपन में, जवानी में, है ना, उनके लिए पहले 3 मोमेंट्स को याद करके थैंक यू करेंगे। फिर प्रेजेंट में अभी जो जो आप कर पा रहे हैं उसके लिए, और फिर फ्यूचर में आप जैसे अपने आप को देख रहे हैं करते हुए उसके लिए। आज का असाइनमेंट वही तो है। थोड़ा क्लियर नहीं, मतलब नहीं आया, तो मैंने बोला आपसे पूछ क्या लूं। नहीं समझ आया, आप मुझे ये बताएं, क्या नहीं नहीं समझ नहीं आया इसमें? नहीं, जैसे मैं अभी है ना, चल पाती हूँ, मतलब जैसे बच्चा चलता है ना वैसे चलती हूँ। तो मेरे को मतलब काफी ग्रेटिट्यूड करना है काफी ना, कि जैसे कैसे मैं करेंगे, पहले। आप बताएं कैसे करेंगे ग्रेटिट्यूड, आप बताएं कैसे करेंगे। थैंक यू करके, कि मैं जैसे पहले चलती थी, डांस करती थी, घूमती थी, वॉक करती थी, सीढ़ियां उतर जाती थी फास्ट। अब वो ही मुझे वापस वैसे ही चाहिए लाइफ, हाँ, तो घुटनों के कैसे लिए। करोगे आज की असाइनमेंट, कैसे करोगे बताओ? ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे करोगे ग्रेटिट्यूड बताओ? थैंक यू। अरे मोटा मोटा बताओ कैसे करोगे, मतलब 3 स्टेप्स है ना आज के असाइनमेंट में, तो कैसे करोगे? पहले उसने पास्ट का बोला, हाँ, पास्ट का कैसे करोगे? पास का जैसे मैं पहले थी, वॉक करती थी, सब कुछ करती थी। हाँ, ऐसे 3 मोमेंट्स याद करके करोगे। फिर उसने बोला प्रेजेंट तो करना है, कैसे करोगे? प्रेजेंट में अभी शुक्राने करूंगी, कैसे? कि जो भी मैं, मतलब जैसे भी चल पाती हूँ, तो उससे बेटर मुझे
और इम्प्रूव करना है अपने आप अरे को। वो तो फ्यूचर आ गया, मैं तो प्रेजेंट अच्छा। की बात कर रही हूँ। हाँ, प्रेजेंट में क्या करोगे? आप बता दो। मेरे को कैसे पता आप प्रेजेंट में क्या हेल्थ एंजॉय कर रहे हो? मैं तो अपना बता सकती हूँ। बस मैं वॉक कर, थोड़ा सा घर का ही होता है, थोड़ा सा कभी कभार नीचे उतरती हूँ ऐसा। उतर पा रहे हो? हाँ अभी बाकी हेल्थ ठीक चल रही है? हाँ हाँ, बाकी सब ठीक है। ये कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड, हाँ, यस। वो कर लेंगे। जी फिर उसके बाद फ्यूचर का भी कर लेंगे। जी जी। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू एनी। थैंक यू स्नेहा जी। Annie, I remember my question. One Uh, second, 1 second. So it's 8:02. People who want to log off can log off. People who have questions can ask. हाँ जी. like yesterday when I was calling for the flat cleaning, it's a few days remaining and my target was around 225,000. So I was in less of targets. So when I got a window cleaning, so I was really confused that how much I should charge that person. So I just wrote 4,999 for the 10 windows he told me. So he told me that it is more. So I told him, okay, what is your budget? I ideally I feel if the windows are too big and messy, so this is what I'll charge. But if when I see them and if they can be in less cost, and what is your cost? If I can, if what is your how much you want to pay for that, and if it is covering my cost and my profit, I will do it for you. So this is what I wrote for him. And then when I was just discussing it with my partner, he said, if you're having those dreams, so just write and ask for what you want. But then it came to my mind, why I should ask for what I want? It should be ideally what is right. Means if I feel the right is after covering my cost. Question or is this the sharing? No, it's a question. I want to understand what should be ideal, how I should have my cost or what my total. ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? मैम मेरा ड्रीम है, तो वो ड्रीम को अचीव करने के लिए आई हैव टू अर्न दैट मनी. या तो if that money if that money is आप coming मुझे in. एक बात बताइए, आप चाय पीने जाते हैं, आप रेडी से खरीदते हैं तो वो 10 रुपए की चाय देता है. आप चायोस में जाते हैं तो वो 150 रुपए की चाय देता है. आप ताज में जाते हैं तो वो 300 रुपए की चाय देता है. आप उस चाय के साथ बिस्किट ऑर्डर करेंगे तो वो 800 से 1000 रुपए की चाय भी देता है. तो उसमें से कौन सी चाय सही है, कौन सी चाय नहीं है? I don't understand. How do you price yourself? It's up to you. What do you think your product is worth? What does that have to do with that? And to be honest, this has nothing to do with this book. This has nothing to do with that. Aapka dream. See, your dreams got to be clear. If you knew how to achieve that dream, you would have achieved it by now. If I knew how to earn 100 crore rupees, I would have earned 100 crore rupees, right? But if I'm clear, okay, no, this is what I want. This is the money I want, and this is what I want it for. That should be your. But Annie, that thought comes ki, when I used to listen to Guru Granth Sahib, they just said tera hai, tera hai. He used to never give it for less or more. Whatever that person wanted, he just kept on giving, and he just married. जी, आपको जो ठीक लग रहा है आप करो. It's your business. Do what feels right for you. Okay. It's your business. Everything's different. So like, I can't tell you to run your business. How can I tell you? It's your morals, your everything. How can you expect me to tell you? So your ethics should come in. Okay, I'll just put it once more. I understand. I have completely understand what you trying to say me. That tea is 10 rupees or 1,000 rupees. It is my call. I understood that. But then when your conscious come in between that I should not overcharge somebody, then what should I do? I don't know what overcharging means. I don't know. Paying 1,000 rupees at Taj doesn't feel like overcharging to me. So I don't know what you're saying. Okay, got your point. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. And I will appreciate, see, if we talk about what we're doing in the chapter. In the sense, if you tell me, Are, shant ho jao aunty. So if you, in the sense, I understand where you're coming from. I understand that all of that.
However, my request would be, पहले तो वो अपना आइडियल स्टेट तो रेडी करो. क्या फर्क पड़ता है यार, हर डील के अंदर प्रॉफिट रेशियो कम ज्यादा तो होता ही रहता है, तो मतलब वो तो हर डील के अंदर क्लाइंट के साथ अलग अलग प्रॉफिट अमाउंट्स रहते हैं. तो व्हाट इज दैट मीन? बट व्हाट इज योर बिगर पिक्चर? What is the bigger picture for the business should be your dream. That, you know, if it is branches or money or profits, and even if it's profits, then what are you doing with the profits? What is the ideal state? That is important. कि एक क्लाइंट से कितना कमाया, एक क्लाइंट से कितना बचाया, तो उसको छोटा छोटा शॉर्टर पिक्चर हो गया. फाइनली क्या चाहते हो, वो उसको फिगर आउट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कैसे आएगा आपको क्या पता, एक ही क्लाइंट से आप इतना मोटा प्रॉफिट कमा लो कि वो हो जाए. सो दैट शुडंट बी योर बॉदरिंग. योर बॉदरिंग शुड बी फाइनली क्या चाहती हूँ. सो दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. बट ठीक है, थैंक्स. हाँ जी, किसी को आज के चैप्टर से कोई प्रश्न है तो कृपया पूछिए. हाँ, My name is Harmeet. I want to ask a question. हाँ जी हरमीत जी. मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मेरे को ये लग रहा है कि जो मेरी आइडियल पिक्चर है वो एक पर्टिकुलर फिगर है और जिसके अंदर मैं फिट हूँ ड्रेस के अंदर. तो मैं आई एम लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. और इन द पास्ट व्हेन आई गॉट मैरिड और आफ्टर अ फ्यू इयर्स, तो मैं ऐसे थी, तो मैं वो विजुअलाइज कर रही हूँ. तो नेक्स्ट मुझे ये दिखाई दे रहा है कि क्या ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या आपके अंदर ये होना चाहिए कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये हुआ है, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल डू दैट. मतलब मैं वो हो जाऊंगी जो मैं चाह रही हूँ, ये पक्का है. बट ये मतलब इसको इस तरीके से प्रेयर को लेना है. नहीं, आज के चैप्टर में तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द ही नहीं बोला. ओके, तो फिर आज के chapter में शब्द ही नहीं आया. राइट. तो क्या एक बोला बार है? इसको दोबारा से मैं करती हूँ कि ये हाँ. मेरा आइडियल था, पहले था, जो मैं दोबारा से होना चाहती हूँ. और राइट नाउ मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ, जो हेल्थ को मैं एंजॉय कर रही हूँ. दैट्स इट. आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया मुझे. आपका क्वेश्चन क्या है? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे क्या करना है. तो मैं उसको एक आपने बार आज आपको की असाइनमेंट सुनी? हाँ. आप मुझे बताएं, अगर आप आज की असाइनमेंट को द वे इट इज डिजाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, बताएं. या तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि जब मैं स्टेप बाय स्टेप हरमीत जी, स्टेप बाय स्टेप बताएं प्लीज. 3 स्टेप्स थे पहले आज की assignment में. राइट. तो पहले पास्ट के 3 इंसिडेंट जब मैं बिल्कुल मतलब अपने आप को एंजॉय कर रही थी, जब मैंने वो मोमेंट एंजॉय करे जिसमें मैं आइडियल वेट पर थी और जिसमें मैं बहुत अच्छी दिखती थी. राइट. और अभी राइट नाउ सेकंड स्टेप है कि राइट नाउ इन फैक्ट ऑफ कि मेरे पास एक्स्ट्रा वेट है, उसके बाद भी मैं चीजों को एंजॉय कर रही हूँ. गॉड ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि मतलब इंस्टेड ऑफ दैट वेट मैं खुद को एंजॉय, खुद को अप्रिशिएट, भगवान को थैंक यू बोल सकती हूँ उन चीजों के लिए. राइट. एक सेकंड. ये रहा स्टेप 1 तो आपने बता दिया. स्टेप 2 एक बार आप पढ़ें. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidney, brain, heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one mentally say the magical sentence for each one. Right. You're going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's power, magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve.
When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state, right? Very often when a person is diagnosed illness or disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening symptoms and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus to the disease. However, the law of attention says Attraction. that we can attraction, okay, says that we can't make, वो थोड़ा सा छुपा हुआ है, brain के नीचे आ गया है. Ah, yes, right. That we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse, right? समझ गई. Instead, we should do the exact opposite and focus on the ideal shape on the area of your body that is unused, and give your thoughts and feelings to that. Gratitude for the ideal state of any part of our body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. Spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of the body that you want, and as you see your body in your mind that you want to be grateful for it as though you have received it. So if you want to magically restore health of your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys. Okay, तो इसको visualize करना है throughout the day, पूरा दिन और रात को सोने से पहले भी, right? Yes. आज का दिन and continue doing it. मतलब if you liking seeing yourself in that figure, continue doing it. Do it as much as you can. Not just today, but like do it all the time till you reach it. It should be the image in front of your eyes all the time that, oh, look, this is how I'm looking, this is the kind of dress I'm wearing, this is how I'm feeling. Be in that experience all the time. Right. और आपके घर पे जो दिवाली पार्टी हो रही है, वो कैसे, मतलब आप कहाँ रहते हो, कैसे है ये चीज, कैसे हम होती है? यहाँ पे गुड़गांव में रहते हैं, तो आप बेस्ट मोस्ट वेलकम है. Okay, okay. Yeah, a lot of people are coming from out of Delhi also. Like I know a gentleman coming from Punjab, Gurdaspur, one's coming from Chandigarh. So people from all across come. Where there's a will, there's a way. So you all are more than welcome. It's going to be very nice, very good. Thank you. तो क्या करते हो आप फिर, इकट्ठे बैठते हो आप, कितना टाइम लगाते हो? I mean, क्या होता है वहाँ पे? अंताक्षरी खेलते हैं. Just kidding. No, just kidding. It's a gratitude Diwali celebration. So related to money, we do concentrated mass gratitude. Like आपने Muslims में देखा होगा, they come together to do prayer, right? You can do it alone also, but they don't do it. Because when a certain number of people, they come together to do prayer, the energies are much, much higher. And कहते हैं ना, आपकी रिक्वेस्ट कहीं ज्यादा सुनी जाती है. सिमिलरली सिखिज्म में उसे साध संगत कहते हैं. गुरुद्वारे में सब जाते हैं, इकट्ठे अरदास करते हैं. एक सर्टेन चीज के लिए जब इकट्ठे लोग अरदास करते हैं तो उसकी प्रेयर वो सुनी जाती है. तो अभी जो हम शाम में मिलते हैं 6 से 8 बजे, उसके अंदर हम प्रेयर, ग्रैटिट्यूड प्रेयर इकट्ठे करते हैं फॉर द एरिया ऑफ मनी. फॉर द एरिया ऑफ मनी. जैसे कल जब हमने yesterday जो किया था, that was for cash money, bank money, fixed deposits, investments, property, घर, उसके लिए हमने भर भर के ग्रैटिट्यूड किया. So एक होता है कि मैं अकेले ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ, एक होता है मेरे साथ 60 लोग बैठे और 60 के 60 इकट्ठे बैठ के अपना इकट्ठे थैंक यू करें. So the energy is much higher there. So that is what we do. It's about gratitude practice, and then it ends with a celebratory dance. We celebrate, we dance, there's food, there's all of that. And similarly, कल का जो party था, उसके अंदर it was about jewelry, it was about gold, it was about rubies, diamonds, about पैसों से खरीदे गए कपड़े, ज्वेलरी, जूते, चप्पल, all those things. It was about gratitude for all of that costs money. उसमें सब लोग इकट्ठे आए और हमने concentrated practice gratitude उसके लिए किया, with the golds and the diamonds. So
एंड इट इज वेरी पावरफुल। मैंने अपने उसमें पिछले 2 दिनों में ही अनुभव किया है, जब आप इकट्ठे आके ग्रेटिट्यूड करते हैं मनी का, तो लक्ष्मी माँ की पावर्स रियली रियली हाई एनर्जी। सो दैट इज, तो अभी 2 दिन हो गए हैं उसके, 2 दिन और मिलेंगे आज और कल, एंड दैट इज हाउ दिस दिवाली सेलिब्रेशन। राइट। थैंक यू। तो ऐसा कुछ यहाँ पर, आई मीन आई बिलोंग टू लुधियाना, यहाँ पर भी कोई है? यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर तो ये नहीं है। मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी अगर आप लोग आ पाए, क्योंकि देखो मैं YouTube पे डाल दूं, बट आई पर्सनली फील हाँ जो एनर्जीज इन पर्सन होती है वो मच मच हायर होती है एज कम्पेयर टू लाइव, है ना। आप अरदास कभी भी ऑनलाइन नहीं करते हो, मतलब आप यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी तो इट्स मच मच हायर। नहीं तो हमने परसों की जो मेडिटेशन है जो हमने की थी वो हमने YouTube पर डाल दी है। परसों की जो थी वो हमने YouTube पे डाल दी है, जो आश्विन मैम ने करवाई थी। तो आप उसको भी दिन उठते ही, आई विल सजेस्ट दिन में उठते ही आप अगर उसको ईयरफोन्स पे लगाएं और उसको आराम से आप उसका करें, तो उससे बहुत ही प्रोफाउंड आपको, कहते हैं ना, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने में मदद होती है। बट दिस इज इन द एरिया ऑफ मनी ओनली, वो सिर्फ मनी से रिलेटेड ही है, तो आप उसको कर सकते हैं। कल की जो मेडिटेशन है वो अभी अपलोड होनी है, वो हो जाएगी, बट आप तब तक परसों वाली से कर सकते हैं। ओके। और इसका लिंक है कहीं पर ग्रुप में? इसका लिंक जो है वो फेसबुक पे ही हम लाइव जाते हैं, तो आप शुक्राना ग्रेटिट्यूड फाउंडेशन के फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। उसी में आपको जितने भी समय तक लाइव, पूरा तो नहीं हो पाता है मगर जितने भी समय तक होता है आप उसमें देख सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू हर्ष। ओके, तो चलिए आज का चैप्टर हम इसी के ऊपर कंप्लीट करते हैं। आप सभी को इस दिवाली के मौसम की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। बहुत सारा धन लक्ष्मी आपके घर आए, बहुत सारी सेहत आपके घर आए। तो इसी प्रकार हम कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे और आपसे कल मुलाकात होगी। हैव अ ब्यूटीफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।